હું વિનોદ અગ્રવાલ, અમારા જે સંરક્ષક છે સુરેશજી આર્ય, સંજીવજી અગ્રવાલ, અમે લોકો અગ્રવાલ મહાસભા જે છે અમારી ગુજરાતની એના વતી ભેગા થયા છીએ. અમે લોકો 17 ને 18 જૂને ગાંધીનગર નારાયણી હાઇટ્સમાં એક અગ્રવાલ બિઝનેસ કોન્ક્લેવ કરવા જઈ રહ્યા છે, જેનું ઉદ્ઘાટન ગુજરાત રાજ્યના મહામહિમ રાજ્યપાલ શ્રી આચાર્ય દેવવ્રતજી કરશે. આ ટાઈપનું આયોજન અગ્રવાલ સમાજ ગુજરાતમાં પહેલી વખત કરી રહ્યું છે, જેના માધ્યમથી અમે લોકો અમારી જે બિઝનેસ કોમ્યુનિટી જે આટલા વર્ષોથી આખા દેશની સેવા કરી રહી છે અને જીડીપીમાં સારું એવું કોન્ટ્રીબ્યુશન છે, એ લોકો આ વખતે અમે લોકો એક પ્લેટફોર્મ આપવા માંગીએ છીએ, જેનાથી જે આવનારી પેઢી છે અમારી અને અત્યારે જે એમએસએમઈ જે ઇન્ડસ્ટ્રીઝ અમારી રન કરી રહ્યા છે એમને એક નવી ટેકનોલોજી વિશે જાણવા મળે અને અમે લોકો દેશમાં હજુ આગળ કેવી રીતે આપણી જીડીપીને આગળ વધારી શકીએ એના વિશેના ડિફરન્ટ ટૉપિક ઉપર ડિસ્કશન થશે. આ વખતે અમે લોકો પ્રયાસ કર્યું છે કે અલગ અલગ વિષયના જે જાણકાર છે એ પર્ટિક્યુલરલી અગ્રવાલ કોમ્યુનિટીમાંથી અને બહારના પણ જ્યાં સબ્જેક્ટ એક્સપર્ટ છે એમના ભેગા કરવામાં આવ્યા છે. એ લોકોની આઈડિયાઝ છે એ અમે એકબીજા જોડે વિચાર વિમર્શ કરીશું, ડિસ્કશન કરીશું. એના સિવાય અમે એક નાનું એક્ઝિબિશન પણ રાખ્યું છે, જેમાં અલગ અલગ સેક્ટરના એક આમ કહેવાય ડિસ્પ્લે જેવું રાખ્યું છે અલગ અલગ કંપનીના અગ્રવાલ સમાજના. એના સિવાય એક B2B મિટિંગ્સનું પણ આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, જેમાં આખો દિવસ કન્સલ્ટન્ટ પણ હશે અને એકબીજાને જે લોકો મળીને ધંધો કેવી રીતે આગળ વધારી શકે એના વિશે પણ ડિસ્કશન કરવામાં આવશે. એના સિવાય ગવર્મેન્ટ ઓફ ગુજરાતની કઈ સ્કીમો છે જેનાથી પણ આગળ ધંધો કેવી રીતે વધારી શકે એના પર ડિસ્કસ કરવામાં આવશે. અગ્રવાલ સમાજ આમ તમે જોશો કે મોટા નામ છે સ્ટાર્ટઅપ્સમાં, ઓલા છે કે ઓયો છે કે મિંત્રા છે, ફ્લિપકાર્ટ છે, પણ ગુજરાતમાં પણ ઘણા બધા એવા સ્ટાર્ટઅપ્સ છે જેમને એક દિશાની જરૂર છે, જે પણ આગળ જતાં એક મોટા યુનિકોર્નમાં તબદીલ થઈ શકે છે. એ લોકોને પણ અમે લોકો ભેગા કરીને એમને શું હેલ્પ જોઈએ છે એના માટે GVFLના કમલ બંસલજી આવવાના છે અને આપણે આઈહબ આવવાના છે, આઈ ક્રિએટના MC ગુપ્તાજી આવવાના છે. તો એ બધા કેવી રીતે આપણે એક ઇકોસિસ્ટમ આગળ વધારી શકાય, અમે લોકો આજે એક કોમ્યુનિટી ઇકોસિસ્ટમ કેવી રીતે આગળ વધીને દેશની ઇકોસિસ્ટમમાં ભેળવીને કેવી રીતે હજુ આગળ દેશને લઈ જઈ શકીએ. $5 ટ્રિલિયન ઇકોનોમીની આપણે 30 ટ્રિલિયન ઇકોનોમીમાં કેવી રીતે આપણે ભાગીદારી કરી શકીએ. અને જ્યારે આપણે 2047માં જ્યારે 100 વર્ષ પૂરા કરીશું આઝાદીના, ત્યારે આપણું દેશ કેવું હોવું જોઈએ એના વિશે પણ ઘણી ચર્ચાઓ થશે. थैंक यू. सो जो प्रोग्राम है उसका कुछ ब्रीफ देना चाहूँगा. अग्रवाल बिजनेस कॉन्क्लेव जिसका आयोजन 17 और 18 जून को किया गया है नारायणी हाइट्स में. सो कॉन्क्लेव का हाइलाइट्स क्या है, तो हम यहाँ पे एग्जीबिशंस हमारे पास में वहाँ पे हमने ऑर्गेनाइज किया हुआ है. उसके साथ में इंडस्ट्री के टॉप स्पीकर्स हमने वहाँ पे इनवाइट किए हुए हैं. अलावा हम B2B नेटवर्किंग का एक प्लानिंग कर रहे हैं कि अग्रवाल कम्युनिटी के जितने भी युवा पीढ़ी है और उसके अलावा जो भी हमारे सीनियर्स हैं उनसे हम कैसे कंसल्टेंसी ले सकते हैं, एक दूसरे से मिल के बिजनेस के बारे में हम बात करना चाहते हैं वहाँ पे. उसके अलावा हमारा अग्रवाल बिजनेस कनेक्ट एक नया एक लॉन्च वहाँ पे हमने रखा हुआ है कि अग्रवाल कम्युनिटी जो बिजनेस कम्युनिटी है उनको बिजनेस में एक दूसरे से कैसे जुड़ सकते हैं. सो उसका हमने एक प्रयास स्टार्ट किया हुआ है और बाकी पैनल डिस्कशन भी हमारे वहाँ पे है. सो आप सभी को इन्विटेशन है टू बी अ पार्ट ऑफ अग्रवाल बिजनेस कॉन्क्लेव. थैंक यू. एक चीज मैं और बताना चाहूँगा इसमें, देखिए आजकल आप भी जानते हैं सबके बिजनेस में हर फील्ड में साइबर क्राइम्स बड़ी तेजी से हो रहे हैं. आपके अकाउंट में से लाखों करोड़ों रुपए निकाले जाते हैं, तरह तरह के क्राइम्स हो रहे हैं. तो इस कॉन्क्लेव में इस विषय पर भी बड़ा ध्यान दिया गया है. इसके जो एक्सपर्ट्स हैं वो युवाओं को ये भी बताएंगे कि आपको इस दिशा में भी किस तरह से सावधानी बरतनी है. इसके अलावा 2 सेशन जो रखे गए, एक है हेल्थ और वेलनेस, क्योंकि कोविड के बाद जो डिप्रेशन और उसकी प्रॉब्लम आ रही है, पर्टिकुलरली जब आप बिजनेस एनवायरनमेंट में हो तो डिप्रेशन, स्ट्रेस लेवल काफ़ी बढ़ रहा है. तो उसके एक्सपर्ट्स भी रखे हैं, क्योंकि अग्रवाल कम्युनिटी में काफ़ी डॉक्टर्स हैं, जाने माने डॉक्टर हैं, तो उनकी सेवा ली है हम लोगों ने. उनके एक पूरा पैनल वो सामने से आए हैं कि हमें कैसे आज के जनरेशन को और नई जनरेशन को कैसे बचाना है इस प्रॉब्लम से. इसके अलावा एक वुमन एंटरप्रेन्योर्स का भी हमने एक पैनल रखा है, क्योंकि अब अग्रवाल औरतें एक हाउसवाइफ तक सीमित नहीं है, आज वो भी कंधे से कंधा मिला के आगे बढ़ रही हैं. वो भी आज हमारी कंपनियों में डायरेक्टर है, एक्टिवली पार्ट ले रही हैं. आपको एक छोटा सा डेटा बोलूँ, अगर 1500 लिस्टेड NSE कंपनीज है तो उनके 350 डायरेक्टर्स लिस्टेड कंपनियों के अग्रवाल से है.
तो इस तरह से, और उसमें फीमेल डायरेक्टर्स भी काफ़ी हैं, तो इस तरह से वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को भी बढ़ावा देते हुए उनका भी विचार है, उनको भी कैसे मेन स्ट्रीम में लेके आए, उनका भी कैसे कंट्रीब्यूशन को सेलिब्रेट किया जाए, उसके ऊपर है। बेसिकली ये कॉन्क्लेव एक सेलिब्रेशन के तौर पे है, जो अभी तक अग्रवाल समाज ने देश के लिए कंट्रीब्यूट किया है, और उसको आगे कैसे लेके जाए, आगे कैसे देश को और आगे बढ़ाया जाए, उसके ऊपर आगे बात की जाएगी, डिस्कशन किया जाएगा। जैसे गौरव जी ने बोला, B2B नेटवर्किंग होगी, और इसको इसी लेवल पे नहीं छोड़ते हुए आगे भी हम कंटिन्यू रखेंगे। मैं संजीव अग्रवाल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। यहाँ पर मैं श्री अग्रवाल विकास महासभा का महामंत्री हूं। मैं आपको अग्रवाल समाज के द्वारा बिजनेस कॉन्क्लेव के अलावा कौन कौन से कार्यक्रम हम समाज के लिए कर रहे हैं, और सिर्फ अग्रवाल समाज के लिए नहीं, गुजरात के अंदर रह रहे हर एक जो समाज है उनके लिए भी किस तरीके के कार्यक्रम हम चलाते हैं, उसके बारे में थोड़ा आपको मैं इन्फॉर्मेशन दूंगा। सबसे पहले तो समाज, आज हम जानते हैं कि टेक्नोलॉजी का यूज सबसे ज्यादा होता है, तो जनरली टेक्नोलॉजी, संस्कार और इंफॉर्मेशन, इन तीन चीजों का समन्वय करके हम लोगों ने कार्यक्रम के आयोजन किए हुए हैं। एक आप सबके सामने है बिजनेस कॉन्क्लेव। बिजनेस कॉन्क्लेव के जरिए समाज को हम एक सामाजिक तौर पे जुड़े हुए जो समाज है उसको हम व्यापारिक तौर पे भी जोड़ने का हमारा ये प्रयास है। दूसरा है हम एजुकेशन में हमने एक एजुकॉम करके एक हमारी कमेटी बनाई हुई है। उसके अंतर्गत हम चाहते हैं कि हमारे समाज के जो बच्चे हैं वो प्रशासनिक सेवा के अंदर जाएं, देश की सेवा करें, समाज की सेवा करें। उसके लिए हमने इस साल अहमदाबाद के अंदर UPSC GPSC के कोचिंग सेंटर शुरू करने का प्रयास किया है। कल की डेट में ही हमने पूरे गुजरात के अंदर टोटल 6 सेंटर के अंदर हमारे समाज के बच्चों का एंट्रेंस एग्जाम लिया है UPSC के लिए। हम चाहते हैं कि जो बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कराया था उनमें से जिनमें टैलेंट है ऐसे बच्चों को हम UPSC और GPSC के लिए कोचिंग दें। तो कल की तारीख में उनका एंट्रेंस एग्जाम हुआ था। दूसरा एक एंट्रेंस एग्जाम हम लेने जा रहे हैं 22 तारीख के बाद। तो हमारा एजुकेशन के अंदर UPSC है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, उसके लिए भी हम प्रिपरेशन कराना चाह रहे हैं, उसके लिए भी आयोजन चल रहा है। तीसरा है, अगर कोई नीडी परिवार है जिसके पास, बच्चों के पास टैलेंट है मगर पैसे के अभाव में अगर वो आगे पढ़ने में असमर्थ हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए समाज इंटरेस्ट फ्री लोन प्रोवाइड करेगा। वो भी एक हमारा कार्यक्रम चल रहा है। दूसरा जो मैंने बोला, हर एक समाज को साथ में लेकर चलने की बात, तो हम लोग सामूहिक विवाह का आयोजन करने जा रहे हैं। वसंत पंचमी का लगभग फाइनल किया है अपना नेक्स्ट ईयर फरवरी में। तो वसंत पंचमी के दिन हम लोग सामूहिक विवाह का आयोजन करेंगे। और पहले भी आपने भावनगर का नाम सुना हो, तो भावनगर के अंदर भी बहुत सारे सामूहिक विवाह अग्रवाल समाज के द्वारा आयोजित हुए हैं। उसमें हर एक समाज के लोग उसमें जुड़े हैं। करीबन 2000 परिवारों के, 2000 जोड़ों का वहां पर सामूहिक विवाह अब तक वो 7 साल में करा चुके हैं। दूसरा एक है, हम लोग एक मोबाइल ऐप लॉन्च करने जा रहे हैं। 18 तारीख को एक अपने समाज का मोबाइल ऐप हम लोग लॉन्च करेंगे SAVM के नाम से। उस ऐप के अंदर समाज के जितने भी परिवार गुजरात में और गुजरात के बाहर रहते हैं उनका वो लोग प्ले स्टोर और ऐप स्टोर के जरिए मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें अपने परिवार की सारी इंफॉर्मेशन डालेंगे। अगर उनके बच्चे शादी के लायक हैं तो उसकी वो इंफॉर्मेशन उसके अंदर डालेंगे। और मैट्रिमोनियल, बिजनेस और जॉब, इस तरीके के सारे मॉड्यूल्स उसके अंदर हमने रखे हैं। तो इस तरीके के बहुत सारे कार्यक्रम हम समाज की ओर से चला रहे हैं और हम चाहते हैं कि इसके जरिए पूरे गुजरात के अंदर जो अग्रवाल समाज है वो संगठित हो और मजबूत हो। धन्यवाद। कुछ अगर डेटा की बात करें तो जो एक रफ डेटा हमारे पास है उसके हिसाब से अग्रवाल समाज का इंडिया की GDP में 20% कंट्रीब्यूशन है, 24% इनकम टैक्स में कंट्रीब्यूशन है, 46% आज भी शेयर ब्रोकर्स अग्रवाल समाज से आते हैं। शिक्षा संस्थान की बात करें तो 30% अग्रवाल समाज की देन है। इस प्रकार से और
हिंदुस्तान के ऑलमोस्ट धर्मशालाएं जो देखेंगे अगर धार्मिक स्थलों पे, उसमें 62% हिस्सेदारी अग्रवाल समाज की है। तो आज मतलब अगर आप देखें तो इस तरह के काफ़ी होते हैं। और बड़े नाम अगर आप बोले उद्योग जगत के, जिंदाल ग्रुप है, आर्सेलरमित्तल ग्रुप है, भारतीय एयरटेल ग्रुप है, वेदांता ग्रुप है, जी टेलीफिल्म्स है, आइडिया सेलुलर, सन फार्मा, एसआर स्टील, ऑलमोस्ट हर फील्ड में, हर क्षेत्र में अगर अग्रणी कंपनी है तो एक अग्रवाल की है। और न्यूज़पेपर में भी अगर आप देखेंगे तो हिंदुस्तान टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस, अमर उजाला, दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण और दिव्य भास्कर। और अगर स्टार्टअप्स की बात करूं तो ओला है या ओयो है, मिंत्रा, इंडिया मार्ट, जोमेटो, स्नैपडील, सभी के फाउंडर्स अपने अग्रवाल समाज के यंगस्टर्स है। तो इस तरह से आप देखोगे तो समाज में और देश के लिए बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और इस कॉन्क्लेव में अभी हम लोग चाह रहे हैं कि स्टार्टअप्स को भी और भी आगे बढ़ावा दिया जाए, आगे जाके हम लोग एंजल इन्वेस्टर उनकी मीट भी की जाए। देश में अभी तक अग्रवाल समाज को 172 पद्म अवार्ड मिल चुके हैं और भारत रत्न भी मिला हुआ है। तो इस तरह से आप देखेंगे तो एक साइलेंटली एक समाज काफी देश के लिए प्री इंडिपेंडेंस, पोस्ट इंडिपेंडेंस काम कर रहा है। और हम चाहते हैं कि जब हम लोग $5 ट्रिलियन, $10 ट्रिलियन जब आजादी का 100 साल पूरा करेंगे 2047 तक, सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन इस समाज से जाए देश को आगे बढ़ाने के लिए। उस उद्देश्य से ये कॉन्क्लेव ऑर्गेनाइज किया गया है और इसको आगे कंटिन्यू करते हुए हम लोग और अगले साल इसको और उससे भी बड़े पैमाने पर ले जाने का प्रयास करेंगे। अगर किसी को कुछ पूछना है और कुछ जानना है आपकी अग्रवाल समाज बहुत ही मतलब अभी आपने समअप किया, डेफिनेटली मतलब अग्रवाल समाज हमारे कंट्री का बहुत ही लीडिंग सेक्शन है एंटरप्रेन्योर्स। आपका यूएसपी क्या है, क्या चीज़ है जो आप लोगों को इतना आगे रखती है? मेन जैसे अंकल जी ने बताया था पहले, महाराजा अग्रसेन जी के हम वंशज हैं। अब महाराजा अग्रसेन जी का ही सिद्धांत था कि हर परिवार, उनका समाजवाद का जो सिद्धांत है, उनके नगर में जो भी रहने नया आता था उनको ₹1 यानी उस वक्त कॉइन्स चलते थे, एक कॉइन और एक ईंट दिया जाता था। यानी ईंट से वो अपना मकान बना सकता था और जो कॉइन देते थे उससे वो अपना व्यापार आगे बढ़ा सकता था। तो हमारा जो मेन सिद्धांत है और हमारा जो यूएसपी है जो आप पूछ रहे हैं, वो ये है कि सबको साथ में लेके चलो और सबको आगे बढ़ाने का प्रयास करो। गुजरात में फर्स्ट टाइम होगा ये अग्रवाल को? नहीं, गुजरात के अंदर पहले 2019 के अंदर सूरत के अंदर हमने बिजनेस कॉन्क्लेव किया था, ये सेकंड बिजनेस कॉन्क्लेव है। और इसमें जितनी एक सिटी को नहीं रोकते हुए पूरे गुजरात के जितने भी हमारी इकाई है समाज की, वो एसएवीएम के अंडर में आती है। और एसएवीएम पूरे अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे इस बार ऑर्गेनाइज कर रहा है। इस कॉन्क्लेव में गुजरात के अलावा बाहर से भी कोई आने वाला? हाँ, गुजरात के अलावा राजस्थान, महाराष्ट्र, दिल्ली से भी लोग पार्टिसिपेट करने वाले हैं इसके अंदर। तो टोटल एक्सपेक्टेशन हमारा 700 पार्टिसिपेंट का है, उसमें से 20% पार्टिसिपेशन हमारा गुजरात के बाहर के स्टेट से है। तो स्पीकर भी हमारे बाहर से आ रहे हैं काफी। ये यूपीएससी में कितने एस्पायरेंट आपके कैंडिडेट्स? टोटल कल की तारीख के अंदर जो एग्जाम हुई हमारी, उसमें 18 बच्चों ने एग्जाम दिया है और 22 को हम जो एग्जाम ले रहे हैं दूसरे बार, क्योंकि काफी बच्चों का ऐसा था कि 11 जून को उनका कोई ना कोई दूसरा कमिटमेंट था, तो वो लोग अपीयर नहीं हो पाए हैं। 22 को शायद उससे ज्यादा बच्चे अपीयर करेंगे, ये ऐसा है। जैसे आपने अभी बताया कि आप बिजनेस के लिए लोन भी देंगे और यूपीएससी की क्लासेस भी कंडक्ट करेंगे, तो क्या ये अग्रवाल समाज के लिए सीमित ही रहेगा या इट इज़ फॉर एवरीवन? इनिशियली जो यूपीएससी के क्लासेस करने जा रहे हैं वो सिर्फ अग्रवाल समाज के लिए ही हमने सोचा है, क्योंकि ये फर्स्ट प्रयास है हमारा। तो हो सकता है कि अगर कुछ उसके अंदर दूसरे समाज के बच्चों को अपन साथ में लेके चलें तो कहीं ना कहीं कुछ अगर त्रुटि रहती है आयोजन के अंदर, तो वो हम ये चाहते हैं कि भाई जो आयोजन करे वो फुल प्रूफ हो, और जब फर्स्ट ईयर के बाद हम करेंगे नेक्स्ट ईयर, तब हम दूसरे समाज को उसमें ऐड करना चाहेंगे। और आपने जो
लोन की बात करी, हम बिजनेस के लिए लोन नहीं देना जा रहे हैं। हम लोग एजुकेशन के लिए, जो परिवार एफोर्ड नहीं कर सकता है हायर एजुकेशन, ऐसे परिवारों को इंडस्ट्री लोन देंगे। तो वो भी समाज के लिए, इनिशियली समाज के लिए ही है वो। ये SCDM stands for रजिस्ट्रेशन हुआ है आपका? सर रजिस्ट्रेशन में अभी 10% जो डेटा है दैट इज फ्रॉम द फीमेल कैंडिडेट, और उन्हीं को प्रमोशन करने के लिए हमने एक डेडिकेटेड वुमेन्स पैनल रखा है। सो 7 लेडीज आर देयर इन द वुमेन्स पैनल एंड दे आर कमिंग विथ 40+ रजिस्ट्रेशन जो अभी हमारा वुमेन से हुआ है, एंड वी आर एक्सपेक्टिंग मोर रजिस्ट्रेशन फ्रॉम वुमेन। आवर टारगेट इज टू देयर अराउंड 100 रजिस्ट्रेशन फ्रॉम द वुमेन्स, क्योंकि अग्रवाल समाज वुमेन्स में भी काफी आगे है। अगर आप CEO लेवल देखो, IAS ऑफिसर देखो, IPS ऑफिसर देखिए, तो हर जगह पे वुमेन्स का इक्वल वहां पे पार्टिसिपेशन अवेलेबल है। कहाँ पर आपको लगता है बहुत बढ़िया आप लोग कर रहे हैं, लेकिन कौन सा एरिया है जो आप थोड़ा पीछे रह गए हैं, ऐसा लगता है आपको, जहाँ ज़्यादा मेहनत करनी है? ऐसे तो नहीं बोल सकते कहीं भी पीछे रह गए हैं, क्योंकि एक हम भी नहीं चाहते कि देश को समाज के तौर पे देखा जाए। एज ए होलिस्टिक तो देश को ही देखना चाहिए, पर जैसे आप देख सकते हैं कि पॉलिसी मेकिंग में भी अग्रवाल के काफ़ी IAS IPS ऑफिसर्स वगैरह हैं, उनके ऊपर इवन पॉलिटिशियंस में भी अगर आप देखेंगे तो काफ़ी आगे आए हैं। तो इस तरह से हम नहीं कह सकते कि ये फील्ड में रह गए नहीं रह गए, लेकिन हमारा प्रीडोमिनेंस जो अग्रसेन महाराज जी ने हमको कहा था कि आप देश की समाज की सेवा तब कर पाओगे जब आप एक बिजनेस कर पाओगे, क्योंकि बिजनेस ही एक ऐसा वो होता है जिसमें आप एम्प्लॉयमेंट दे सकते हो, आप पूरे समाज को जोड़ सकते हो, आप लोगों को एक एम्प्लॉयमेंट दे सकते हो तभी, क्योंकि और प्लस जो आप टैक्स पे करते हो, आप जो कमा के आगे समाज को देते हो, आप चैरिटी करते हो, उस तरह से हर तबके के लोगों को आप सपोर्ट कर सकते हो। Coaching will be online or offline? जी, UPSC coaching will be online or offline? Both way, both. Whether you charge fees from सर इनिशियली जो हम बहुत नॉमिनल फीस के ऊपर हम लोग करेंगे, और जो नीडी परिवार हैं उनका हम फ्री में कोचिंग देंगे। और सेकेंडली आपका जो क्वेश्चन था कि इसको क्या सिर्फ अग्रवाल समाज तक सीमित रखा जाएगा, तो हमारा जो मोटिव है उसमें ऐसा है कि इनिशियली 50 स्टूडेंट्स को हम फिजिकल कोचिंग देंगे, और वो जो सेम फिजिकल कोचिंग है उसका हमारा एक ऑनलाइन पोर्टल बनेगा, एंड दैट ऑनलाइन पोर्टल इज अवेलेबल अक्रॉस द इंडिया। कोई भी समाज, कोई भी व्यक्ति वो पोर्टल पे आके अपना रजिस्ट्रेशन करवा के वो जो भी कंटेंट है जो हम 50 यूजर्स को दे रहे हैं उसका एक्सेस कर सकते हैं, दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। आपने बताया कि पीएम के विजन को, मतलब पीएम के विजन को सपोर्ट करने के लिए, या तो अपने जो अपना जो समाज है उसको डेवलप और उसको डेवलपमेंट और उसका विजन क्लियर हो। सी समाज अगर डेवलप होगा तो ऑटोमेटिकली देश डेवलप होता है, और PM साहब ने एक विजन दिया है, लेकिन अभी तक भी समाज तो अपने आप भी डेवलप हो ही रहा था। आज 75 साल से आप देखोगे, उससे पहले से भी देखोगे, महाराजा अग्रसेन साहब तो इतने सालों से अपने एक विजन देके गए हैं। तो समाज का अपना एक विजन होता है, देश का एक अपना विजन होता है, और लीडर का अपना एक विजन होता है। जब ये तीनों अलाइन होते हैं तो ऑटोमेटिकली देश आगे बढ़ता है। ये जो 50 ऑफलाइन आपने बात किया, तो वो कहाँ क्लासेस कहाँ होने वाली है? अभी इनिशियली अहमदाबाद के अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं। आपको कितनी अपेक्षा है इस कॉन्क्लेव में बिजनेस अलग अलग फील्ड से जुड़ने की? कुछ बजट या ऐसा कुछ एक्सपेक्ट किया है कि इतना हमारा टारगेट है? किस तरीके का बजट? मतलब यू आर गोइंग टू जॉइन द बिजनेस इन कॉन्क्लेव, डिफरेंट बिजनेसेस, इंटरेक्शन ज़्यादा है। सो बेसिकली ये जो कॉन्फ्रेंस है ना, ये फंडिंग के लिए नहीं है, मैं आपको थोड़ा सा, और इट्स अ नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म, और जो कम्युनिटी अक्रॉस द इंडिया या अक्रॉस द वर्ल्ड जुड़ा हुआ है उनको एक प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं। वो सारे लोग यहाँ पे आते हैं, हम काफी लोगों से मिले नहीं है। हमारे जितने भी प्रीवियस जो प्रोग्राम हुए हैं वो एक कम्युनिटी बेस्ड प्रोग्राम हुए। दिस इज द सेकंड प्रोग्राम दैट वी आर डूइंग इट फॉर द बिजनेस कम्युनिटी। सो उनको एक दूसरे से मिलाने के लिए, एक दूसरे से इंटरेक्शन हो, तो पर्पस हमारा ये है। एंड सेकंड पर्पस इज दैट द नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म, कि हमने जितने भी टॉपिक्स रखे हुए आप सभी को उसका इन्विटेशन कार्ड दिया हुआ है। उसमें जो अगर आप टॉपिक्स भी देखोगे तो हमने शुरुआत किया है कि कंपनी बनाए कैसे, उसके बाद में कंपनी को आगे कैसे लेके जाए, कंपनी में जो गवर्नमेंट स्कीम्स है उनके कैसे बेनिफिट्स लिए जाए,
और आगे के जो टॉपिक्स है, हम हेल्थ पे भी काफी वर्कआउट कर रहे हैं कि हेल्थ है तो वेल्थ है। सो उसके बेसिस पे हमने पूरा हेल्थ का एक सेशन रखा हुआ है। साथ में टेक्नोलॉजी के सेशन से वहां पे ब्रांडिंग का एक सेशन है हमारा, और उसके साथ में साइबर सिक्योरिटी पे काफी हमने वहां पे एक जोर दिया हुआ है। नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी से हमारे पास में फैकल्टी है जो ये प्रोग्राम को एड्रेस करेंगी। सो हमारा मोटिव ये है कि ज्यादा से ज्यादा जितने कॉमन टॉपिक्स है, जो कॉमन बिजनेसमैन का नीड है टू नो कि उसके बिजनेस में ये सारी चीजें कैसे यूजफुल हो सकती है, सो हमने प्रयास किया है कि हम मैक्सिमम टॉपिक्स वहां पे कवर कर सकते हैं। आप लेट नहीं हुए ऐसा नहीं लगता आपकी कॉम्पिटिशन नहीं, कभी भी लेट कभी नहीं होता।